After a long gap, we will continue exercise 8.3, chapter number 8 of class 8. So, welcome once again in Rashmi Gupta maths classes, and we will continue with question number 5. Vasudevan invested rupees 60,000 at an interest rate of 12% per annum. Compounded half yearly. So the question is of half yearly, so that मैंने इसको underline किया हुआ है. What amount would he get? The first part is after 6 months and the second part is after 1 year. That means the question of half yearly. तो फर्स्ट हम उन चीज़ों को मेंशन कर देते हैं जो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है. दैट इज P इज़ द प्रिंसिपल अमाउंट. इट इज़ द ₹60,000. रेट इज़ 12% per annum. Question is of half yearly, so the rate will be half. 12 upon 2, that is 6% per annum. And the first part is, for the first part, time is after 6 months. After 6 months means T is equal to 6 months, and the formula for the years. So first we have to convert it in years by dividing by 12, and it will be 1 upon 2 year. And question में half yearly है, so that we have to double it. 1 upon 2 into 2, that is it is 1 period. क्योंकि 2 से 2 कट हो जाएगा, it will be 1 period. Now we have to find out the what amount would he get. The formula is that A is equal to P. A is equal to P 1 plus R upon 100 to the power T. So it is A हमें find out करना है. P है is 60,000 and 1 plus R is 6 upon 100 to the power 1. Now we have to simplify is 2 3s are, और हम इसको कट कर सकते हैं. Now solve it. 60,000 ये हो गया 53 upon 50. एंड नाउ 0 से 0 कट कर सकते हैं, एंड 5 से ये हमारा कट हो जाएगा. 5 1 ज़ा 5, 1 यहाँ पर बचा. 5 2 ज़ा, that is 1200, means 1200 into 53. and when we multiply it, जब हम 1200 और 53 को multiply करेंगे, it will equal to ₹63,600. it will be the amount after 6 months. तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या था? 60,000, and after 6 months Vasudevan have to return is 63,600. So it is the first part, and the second part we have to find out for the about 1 year, means after 1 year कितनी अमाउंट हमको पे करनी होगी. तो इसके लिए क्या चेंज हो जाएगा? टाइम ओनली. तो सेकेंड पार्ट के लिए T है हमारा 1 ईयर, एंड वी हैव टू डबल इट, दैट इज़ 1 into 2 पीरियड. और बाकी जो चीज़ें हैं रिमेनिंग विल बी रिमेनिंग सेम. So A is equal to P 1 plus R upon 100 to the power T. It will be P is 60,000 and 1 plus R is 6 upon 100 power 2. Okay, now the same will be 2 3s are 50. It will be 60,000 into 53 upon 50 into 53 upon 50. क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे it will be इक्वल टू दिस. नाउ 2 0 से 2 0 कट, 5 से कट किया 1 2 0, और अगेन इसे 5 से कट किया. 5 2 ज़ा 10, 2 5 4 ज़ा 20. दैट मीन्स इट विल बी 24 इंटू 53 इंटू 53. और जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं ये इक्वल आता है 67,416. तो दैट मीन्स वसुदेवन हैव टू रिटर्न 67,416 after 1 year. So by this way we can solve the question number 5. Now come to the question number 6 is RF took a loan of ₹80,000 from a bank. If the rate of interest is 10% per annum, find the difference in amount he would be paying after 1.5 year. If the interest is compounded annually or compounded half yearly. Means यदि हमारा जो interest है compounded annually यदि वो पे करता है तो कितना होगा, and the second part is compounded half yearly कि यदि वो half yearly पे उस लोन को लेता है तो कितना रिटर्न होगा. So the first is amount is P is ₹80,000, and here R is 10% per annum. जब हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, बिकॉज इट इज़ ऑफ कंपाउंडेड एनुअली, तो इट विल बी सेम
हमें बताना है कि कितना आफ्टर 1.5 ईयर बाद होगा, तो टाइम इज़ 1.5 ईयर एंड वी कैन राइट इज एज 1 + हाफ ईयर। जब भी हमारा टाइम फ्रैक्शन में होता है तो पहले हमें होल नंबर के लिए उसको फाइंड आउट करना होता है। तो फार्मूला विल a इज इक्वल टू p 1 + r/100 to the power t। a इज इक्वल टू 80,000 1 + 10/100 to the power 1। 10 से 10 कट हो गया एंड इट विल बी 80,000 इंटू 10 + 1 मीन्स 11/10 फॉर द 1 ईयर। ये 10 से 10 कट हो गया, इट विल बी व्हेन वी मल्टीप्लाई इट विल बी 88,000 रुपीज़। तो ये हो गया हमारा अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। लेकिन अभी हमें किसके लिए करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में था 1.5 ईयर के लिए, तो अभी हमने 1 ईयर के लिए निकाला है। हाफ ईयर के लिए वी हैव टू सिंप्लीफाई इट विद द सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला। दैट मीन्स simple interest is equal to P into R into T upon 100. So P will be here 88,000 into R is here 10% per annum and it will be T. T is 1/2 into 100. Now solve it. 20 से 20 कट हो गया, 2 5s are 10. It will be 880 into 5 or when we multiply it, it will be rupees 4,400. So total amount after 1.5 year, total amount कितना होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 88,000 + 4,400, it will 92,400। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया कि हमें 1.5 ईयर बाद इतनी अमाउंट पे करनी है। नाउ फॉर द सेकेंड पार्ट इट इज़ कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए क्या होगा हमारे लिए, कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए आर जो है वो हाफ हो जाता है और टाइम डबल हो जाता है। सेकेंड पार्ट के लिए पी विल बी रुपीज़ 80,000, आर इज़ 10% पर एनम, तो इट विल बी, ये कितना रह जाएगा 5% पर एनम एंड द टाइम इज 1.2 ईयर, दैट मीन्स 3/2 और इसको डबल करना है, 2 से 2 कट हो गया, ये हो गया 3 पीरियड्स में कन्वर्ट। ओके, नाउ कम टू द फॉर्मूला। A इज इक्वल टू P 1 + R/100 to the power t। P इज 80,000 एंड 1 + 5/100 to the power 3। इसको कट किया, इट इज़ 1/20, दैट इज़ 80,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20 और 1 2 3 30 से 30 कट, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 को कट करेंगे, इट विल बी 10 और जब इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे आंसर विल बी 92,610। ये हो गया हमारे सेकेंड पार्ट का आंसर। अब हमसे क्या पूछा है कि फाइंड द डिफरेंस। क्वेश्चन इज दैट ऑफ फाइंड द डिफरेंस। सी हियर, फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट ही वुड बी पेइंग। अब हमें बताना है दोनों अमाउंट में कितना डिफरेंस होगा। तो फर्स्ट अमाउंट है हमारा 92,400 एंड द सेकेंड इज 92,610, इट इज़ बिगर, तो डिफरेंस विल बी 92,610 minus 92,400, इट विल बी रुपीज़ 210। डिफरेंस होगा हमारा कि यदि जो आरिफ है वो कंपाउंडेड एनुअली लेता है और कंपाउंडेड हाफ ईयरली लेता है, तो हाफ ईयरली में उनको अमाउंट ज़्यादा पे करना होगा आफ्टर 1.5 years। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7 is Maria invested rupees 8,000 in a business. She would be paid interest at 5% per annum compounded annually. So the question is compounded annually. We have to no changes this question. तो ये हो गया हमारा P, इन्वेस्ट किया उसने 8,000 रुपीज़ and R is 5% per annum. R is 5% per annum means rate 5% per annum है। Now the first part is the amount credited against her name at the end of the second year। 2 साल बाद कितना अमाउंट उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, क्रेडिट होगा। तो हमने क्या किया, फॉर्मूला इज़ P 1 + R/100 to the power t। इट विल बी 8,000
और ये हो गया 1 + 5/100 टू द पावर 2, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमें 2 साल के बाद बताना है. सिंप्लीफाई इट 1/20 एंड व्हेन वी सॉल्व इट इट विल बी 8000 इंटू 20 LCM 21/20, 21/20 एंड 21/20. 2 0 से 2 0 कट हो गया और 2 2 ज़ा 4, 4 से कट किया 20. इट विल बी 20 इंटू 21 इंटू 21 441. दैट मीन्स द ₹0288. 8000 इन्वेस्ट किया, आफ्टर 2 ईयर कितना अमाउंट उनके अकाउंट में आएगा? 8820. ओके, एंड द सेकेंड पार्ट इज द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर. अब हमें क्या निकालना है? इंटरेस्ट निकालना है थर्ड ईयर के लिए. तो थर्ड ईयर के लिए जो ये अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स है ये हो जाएगी आपकी कन्वर्टेड एज प्रिंसिपल अमाउंट 8820. अब क्या है? थर्ड ईयर है, सिर्फ 1 साल की बात कर रहे हैं, तो टाइम हो गया 1 ईयर एंड आर विल रिमेन सेम 5% पर एनम. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट इट बाय सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला, क्योंकि हमसे इंटरेस्ट पूछा है. P इंटू आर इंटू T अपॉन 100 इट विल बी 8820 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन 100. 1 0 से 1 0 कट हो गया, 2 से 5 2 ज़ा 10 एंड 2 से कट हो गया 441. दैट इज इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर ओनली. इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर ओनली ₹441. तो ये हो गया थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट. हमसे क्या पूछा है? अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट on ₹10,000 for 1.5 year and 10% per annum compounded half yearly. Okay, the first question is that ये यहाँ तक खत्म हो गया. Now, would this interest be more than the interest he would get if it was compounded annually? Means यदि वो same amount को compounded annually लेता है तो क्या उसको कम interest देना होगा? That means in both the cases we have to find out the amount and the compound interest for compounded half yearly और the compounded annually. तो पहले हम करते हैं compounded half yearly के लिए. For compounded half yearly, amount will be P is ₹10,000, R is 10% per annum, compounded half yearly है, it will be half, तो ये हो गया 5% per annum, and the time is 1.5 means it is 3/2 और इसको डबल करना होता है, 2 से 2 कट हो गया, it will be 3 periods. Now we have to find out the amount और interest. हमें दोनों चीज़ें निकालनी है. So use formula P 1 + R/100 to the power T. P हो गया हमारा 10,000 और 1 + 5/100 to the power 3. ये कट हो गया. It will be 10,000 into 21/20 into 21/20 into 21/20. Now cut it. 3 0 से 3 0 कट हो गया और 1 2 से सिर्फ 5 कट हो गया. Now when we multiply of the numerators it will equal to 46305 and the denominator is 2 2 ज़ा 4. It will be ₹11,576.25. ये हमारा अमाउंट आ गया आफ्टर 1.5 years if the interest is compounded half yearly. Now we have to find out the interest also, compound interest. A minus P, it will be 11,576.25 minus 10,000. तो ये आ गया 1576.25. ये हो गया हमारा compound interest. And the question is that would this interest be more than the interest he would get it? Means we have to compare the interest. तो हम इसको क्या करते हैं? हम इसको यहाँ पर हाईलाइट कर कर रख लेते हैं कि ये हमें कंपेयर करना है. नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट. इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, यदि हमारा जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड एनुअली है, बाकी सब चीज़ें तो सेम रहेंगी. P इज सेम, R इज सेम. कंपाउंडेड एनुअली में क्या होगा? टाइम इज 1/2, so that means 1 + 1/2 year. That means we have to find for the 1 year. तो पहले हम 1 year के लिए निकालते हैं. A is equal to P 1 + R/100 to the power T. Question is long but it is very easy.
10,000 1 plus r is 10 upon 100 to the power 1. 10 से 10 कट हो गया. 10,000 इट विल बी 11 अपॉन 10. और हाँ, अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट एंड शेयर योर फ्रेंड्स ऑल्सो. ओके, नाउ कट इट विद 10 से 10 कट हो गया और यहाँ से आ गया ये 11 1 2 3 zeros here. 10,000 इंटू 11 अपॉन 10 और ये 10 से कट हुआ, इट विल बी 11,000. ओके, नाउ दिस अमाउंट विल बी द प्रिंसिपल अमाउंट फॉर द 1.5 1/2 ईयर के लिए. तो ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1/2 ईयर. इट विल बी PRT अपॉन 100. तो यहाँ से आ गया आपका 11,000 इंटू 10 आर टाइम है 1/2 इंटू 100. 20 से 20 कट, 2 से 5 कट, 2 5 ज़ा 10 मीन्स. और ये आपका इंटरेस्ट हो गया यहाँ से 550 ओनली. ठीक है, तो हमारा टोटल अमाउंट जो हमारा पे होगा, टोटल अमाउंट इट विल बी व्हाट 11,000 प्लस 550, दैट इज़ रुपीज़ 11,550. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द CI, क्योंकि हमें CI कंपेयर करना है. तो A माइनस P इट इज़ 11,550 माइनस 11,000. ओके, सो जब हम इसको माइनस करेंगे इट विल बी 5 और 5 11,000 में 550 रुपीज़ विल बी द इंटरेस्ट. ये यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया. इट इज़ 10,000 तो इट विल बी 1550. ओके, जब हम माइनस करेंगे क्योंकि P हमारा 10,000 था. नाउ इट इज़ द CI फॉर द सेकेंड पार्ट मीन्स कंपाउंडेड एनुअली. अब हमें कंपेयर इसको करना है CI जो हमने पहले हाईलाइट किया था. इट इज़ 1576.25 एंड इट इज़ 1550. तो वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस. तो डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं. डिफरेंस इज, वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इट वॉज कंपाउंडेड एनुअली. कि यदि वो कंपाउंडेड एनुअली लेता है तो उसको कम इंटरेस्ट देना पड़ रहा है. ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस. इट इज़ 1576.25 माइनस 1550 और दैट इज़ रुपीज़ 26.50. तो इसका क्या मतलब है कि यदि वो कंपाउंडेड जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली लेता है तो उसको देना पड़ेगा दिस इंटरेस्ट. लेकिन यदि वो कंपाउंडेड एनुअली लेता है ही हैव टू गिव ओनली 1550. तो दैट मीन्स लेसर कौन सा है, कंपाउंडेड एनुअली.